हेलो गाइस, वी आर एट एक्वेटिक बायोटॉस बानेर एंड हमारे साथ शॉप ओनर शिफा मैम है. सो ओवर टू यू मैम, थोड़ा शॉप के बारे में और हमें बताएं. Hello everyone, I'm Shifa. Welcome to Aquatic Biotopes. So basically, just to give you a background about our enterprise. So our company started in 2007. Initially, हम लोग खुद घर पे aquariums रखते थे, and we decided that we would like to go into the business of the same. जब हमने ये decision लिया, we wanted to be well educated about what we were going into. So we studied upon material, we tied up, we traveled, we met different people, and gained the knowledge before we went ahead and started to sell. So जब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, हमारा भी यही माइंडसेट रहता है when we speak with them. What are the problems that a person starting off with an aquarium faces, and what is the best way to go about of setting an aquarium? So pre-COVID, we had 5 stores across Pune. We also were providing wholesale services across Pune, Gujarat, and Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan. Currently, we have 2 stores which are in operation. So a big chunk of our business is actually with corporates like Bitwise, GS Lab, Barclays, AS Traders, the JSPM Institutes in Pune. So ये सब जितने भी हैं, इन सब के साथ में हमारा काम चल रहा है. And other than this, we also do home aquariums and public aquariums. इसके साथ में as we do ponds, कोई ponds हम लोग काफ़ी करते हैं. So we also do work in landscaping. Landscaping के साथ में fountains and swimming pools is also an area that we cover. So this is what we do. In the past few years, as we have kept on learning and growing, हम लोग same knowledge अपने customers के साथ में भी impart करते हैं. As if you log into our Insta channel as well, you will find that we work with the customers, be it aquascaping, be it marine aquariums, कि लोगों को समझ में आए why we are doing what we are doing. Why, if we are keeping a life, it is a responsibility, and उस responsibility को पूरा करने के लिए we should have some background knowledge when working. So I work mostly with the sales and marketing team of this enterprise. So I would like to hand over to our technical expert over here. So he's Mr. Balbir Singh. And just to give you a background about him, I will ask Sir to introduce himself. Yes, thank you. Hi everyone, Balbir Singh. I have a background of Indian Navy और जैसा नेवी से हूँ तो बचपन में नेवी में गया था. पानी के साथ एक अच्छा रिलेशन फॉर्म हो गया. सो रिटायरमेंट के टाइम पे इसको कैरी करना इजी रहा. एंड क्योंकि फौजी है तो कुछ प्रिंसिपल बेस्ड हम लोग करते हैं. तो लाइक इफ़ यू विल गो थ्रू आवर स्टोर, तो हमारे स्टोर में नॉर्मल एक्वेरियम, जैसे एक्वेरियम अगर आप सुनते हो इन इंडिया, एक्वेरियम का मतलब होता है मछली और पानी, बस. इससे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता. इफ़ यू गो अराउंड ऑल ओवर इंडिया, आपको 80 to 90% शॉपकीपर मिलेंगे जो एजुकेटेड नहीं हो. तो मेन बेसिक काम उनका रहता है मछली ले लो, पानी ले लो, मर गई नया ले लो, राइट. आप गूगल कीजिएगा, फिश के ऑक्शंस रेट देखिएगा, आपको पता चलेगा एक एक फिश जो है करोड़ में बिकती है. सिंगल फिश की प्राइस उतने होते हैं. तो एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि आखिर इतना पैसा क्यों देते हैं. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे बहुत सारी नॉलेज होती है, इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च होते हैं जो काम करते हैं. और जब हम किसी फिश को लेके आ रहे होते हैं तो फिश इज नॉट इन्वाइटिंग अस टू टेक देम, वी आर गोइंग एंड टेकिंग देम. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पहले उसके बारे में समझें कि व्हाट इज देयर हैबिटेट, कैसे एटमॉस्फेयर में उनको रखना चाहिए, और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम फिश को टैंक में डालें, रादर देन गए शॉप से टैंक उठाया, पानी भरा, मछली डाल दी. ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ एडिबल फिश, दिस इज अ ऑर्नामेंटल फिश. जिंदा चीज़ है. खुशी तब मिलती है जब ये हैप्पी रहती है. ये हमें समझना पड़ेगा. मरी हुई फिश किसी को पसंद नहीं आती, बीमार फिश किसी को नहीं पसंद आती. तो इसलिए इनके डॉक्टर, इसके मम्मी, इसके पापा हम ही. So we should have the knowledge before keeping any species, not only the fish. कोई भी पेट्स जो हम रख रहे हैं जो हमें कम्युनिकेट नहीं कर सकता है कि उसे प्रॉब्लम है, तो हमें पहले से एजुकेट होना चाहिए कि हम किस तरह से उसे रखने हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल वी फॉलो ऑल अराउंड द शॉप. अगर आप देखेंगे कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल लेंगे, वो कलरफुल पेबल, प्लास्टिक प्लांट्स हम लोग नहीं यूज़ करते हैं. इस शॉप के अंदर जो भी फिशेज हैं वो अपने ओन सेटअप में, मालावी चिचलेट्स के वाटर पैरामीटर में, उनके सेटअप्स में. जो टेट्रास है वो अपने सेटअप में है, सॉफ्ट वाटर प्लांटेशन सेटअप विच इज रिक्वायर्ड, वो उसमें रहेंगे. कोई भी फिश ऐसा नहीं है कि हाँ बड़ी ग्रो होने वाली फिश है और उसको हमने छोटे टैंक में अकोमोडेट किया हो, नहीं.
हमारे यहाँ जो हमारा स्टाफ है वो भी अगर सेल करता है तो वो मेक श्योर करता है कि ये फिश कहाँ पे जा रही है, जिस घर में जा रही है वहाँ पे टैंक में क्या चीज़ें मौजूद है, क्या वो एटमॉस्फेयर इस फिश के लिए सुटेबल है। अगर नहीं है तो वी डोंट सेल द फिश, वी लव देम एज आवर चाइल्ड। और इसी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कस्टमर को भी एजुकेट करें कि दे शुड हैव अ रिलेशन विद द फिश रादर देन बस फिश रखा हो राइट। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। सो फिश स्टॉक कवर करते हैं अब शॉप पे। सो मैम इस टैंक में कौन सी फिशेस हैं? So this is our tank dedicated to different varieties of goldfish. So यहाँ पे आप देखेंगे we have some red head black orandas. These are imported from Thailand. Then we have some Ryukin. Yeah, that's the Ryukin goldfish that you can see. This is also imported from Thailand. Then we have some calicos. We have some lion heads and oranda golds. So mostly we keep goldfish, more of the imported varieties. जो normal varieties हैं उसको थोड़ा कम रखते हैं. We prefer to keep something that is unique. ओके। सो ये टैंक कौन सा है मैम? So this is a mixed tank of soft water fish. इसमें आप कुछ varieties of non-aggressive fishlets देख रहे हैं. So we have angels, actually a variety of fishlet. I don't know if you know that. And we have some geophagus. The geophagus is also a variety of fishlet. इसमें Suriname है. And we have Bosmanian rainbow and Australian rainbows and shiverams. तो मैम ये ऊपर आपने क्या लगा रखा है? स्मोक मेकर है बेसिकली दिस इज? So this is basically a fog maker, yes. Okay. इससे काफ़ी अलग लुक आ जाता है to the entire scape. Basically हम लोग जैसे we are close to लोनावला and लोग अगर रेस्ट करने के लिए, स्ट्रेस बस्ट करने के लिए जाते हैं तो they go to लोनावला. So we have tried to create that cloud atmosphere, you know, the clouds are coming down. So ma'am, basically this smoke maker or fog maker does not harm the fish. Not at all. It uses the water particles only to create the smoke effect that you can see. It's Okay. not actually smoke; it's just particles of water. Okay. So इस pond में मैम basically सारी Japanese कोईज ही हैं? Yeah, these are imported kois. इनमें कुछ आप अगर देखेंगे, we've got some wheel tail kois also in there. And यहाँ पे we have a lot of fun as once in the evening we have a feeding time. Okay. So if we have kids or people who are who want to interact with the fish, we have a feeding zone over here where they can come and feed the fish. Okay. So इनसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके दांत नहीं रहते हैं. They are very docile but hungry. So they will come and eat the food from your palm. So मैम ये रीज़न क्या है? लाइक बेसिकली आपके हाथ से इतना अच्छा फूड जल्दी खा रहे हैं? बेसिकली क्या होता है ना, अगर फिश को आप करेक्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, वेयर दे आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी, तो फिशेस आपके पास में आने से डरते नहीं हैं. दे एंजॉय कमिंग एंड इंटरेक्टिंग विद यू व्हाइल दे टेकिंग देयर फीड. अगर आप फिशेस को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो दे विल एक्चुअली गो एंड हाइड, राइट. तो यहाँ पे बिकॉज द फिश आर कंफर्टेबल विद अस, दे आर हैप्पी दैट दे आर गेटिंग द फीड फ्रॉम अस. तो ये मैम बेसिकली कोई फिश का पॉन्ड है बेसिक आपका? जी. इसमें सारी जापानीज कोईज एंड वेल टेल These कोई? are imported kois. Okay, and imported. इसमें- yeah, these are wheel tail kois. जैसे आप देख सकते हैं, इसका tail का जो shape है, that's why it's called the wheel tail. Wheel means a long cloth. ओके. So पीछे जैसे weddings में brides के gown का रहता है wheel. Okay. Something similar to that. So that's why the name. So आप कोई fish को अगर देखेंगे, the color and the pattern is more beautiful from the top view Yeah. rather than the side view. And as they are generally found in larger water bodies, so they are more comfortable in tanks which are more like a pond. मतलब जो आपके eye level से नीचे हो. So we have not kept them in a tank. We've kept them in a space which would replicate a pond. ओके. अगर कोई अपने घर में pond कराना चाहता है तो ये best fish है जो हम लोग suggest करते हैं. सो मैम इस टैंक में डिस्कस फिशेस हैं? Yes, so we have some large discus over here. They are one of the most coveted varieties of fish in the aquarium industry क्योंकि इनका कलर बहुत ही खूबसूरत रहता है. ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, these discus are above 5 inches, 5 inch and above size. ओके.
सो इसमें डिस्कस की कौन सी वेराइटीज है मैम? इसमें आपको रेड मेलन दिख रहा है, दैट्स द वन विद द प्रेडोमिनेंट रेड कलर. देन वी हैव ब्लू डायमंड्स which Okay. have got a blue sheen on the body. ओके. We have some checkerboards. So depending on the different designs that are there on the bodies, discuss के अलग-अलग नाम रहते हैं. So we have some checkerboards, we've got some eruptions. ओके. So very pretty bright fishes these are. Definitely not a fish जो हम लोग initial stage में लोगों को बोलते हैं. This is a fish that would be an intermediate to say advanced level of fish, क्योंकि इनको care थोड़ा ज़्यादा लगता है. So this is basically a freshwater fish. Yes, this is a freshwater fish, delicate fish. This is also from the family of the cichlids actually. Okay. But these are you can say the soft water cichlids. ओके. नेक्स्ट, ये कौन सा टैंक है? So this is our semi-aggressive tank. So semi-aggressive barbs आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. We've got some green tiger barbs. We've got some golden barbs over here, and we have a surfeit tetra and some Santa Claus at the back. ओके. So barbs जो रहते हैं, they are categorized as semi-aggressive. So once you're planning a tank with them, you have to make sure कि आपके उसके साथ में जो tank mates हैं वो बहुत ही शांत किस्म के ना हो, नहीं तो उनको परेशान करते हैं. So you have to plan a tank which is a community जो एक दूसरे के साथ में रह सके. If you look focus at the back, आपको कुछ fishes दिखेंगी जो एकदम bottom में पीछे बैठी हुई हैं. Yeah. So वो इतनी शांत जितनी दिख रही है वैसे है नहीं. Okay. They are called the golden alligators, but they are very helpful fish for aquarium keepers, क्योंकि वो आपका algae का जो problem है उसको काफ़ी sort out करते हैं. तो उनका नाम ही उसकी वजह से golden alligator पड़ा है. ओके. नेक्स्ट, ये कौन सा टैंक है मैम? So this is a mini planted setup. We have some ember tetras over here, and we've got harlequin tetras. And इसमें अगर आप focus करेंगे, we have a lovely albino hyphen over here, which is a variety of a pleco. ओके. Then we have some striped snails as well. Snails also a very interesting addition to your planted aquariums. नेक्स्ट, दिस टैंक. So here आप देखेंगे आपको छोटे छोटे कुछ creatures दिख रहे हैं. इसमें जो है we have shrimps. We have 3 varieties actually. इसमें I think the yellow ones are sold out right now. So you can see some red cherry shrimps and you can see some Riley shrimps. So Riley shrimps जो है वो white और red color के हैं. ओके. And अगर आप सामने देखेंगे you will be able to see an orange body which is there. So that is actually a result of molting. So these are basically from the family of crustaceans. Okay. Crustaceans क्या करते हैं? At different stages in their life, they will actually leave out the outer coating of their body ओके. and gain a new skin. So जैसे कहते हैं सांप जैसे अपना skin निकालता है, वैसे ये भी निकालते हैं. So that old form will be left and the new organism will continue to live. ओके. We have some koi guppies also in this tank. ओके. So these are also an imported variety of Guppies. guppies. ओके. Okay. इसमें just add करना ना that we generally keep only imported varieties of guppies. ओके. इंपोर्टेड वेराइटीज ऑफ गफी एंड श्रिम्प्स. Yes, imported varieties of guppies रहते हैं. So we had some blue angler guppies and these guys, and we had black cobras. Okay. Abhi these are the last of the kois that you can, last of the Guppies. guppies that you can see. over here. इस टैंक में कौन से फिशेस हैं मैम? So this is a good beginner's tank. इसमें आप काफ़ी bright and fast moving जो fishes देखते हैं. These are the color zebras. Okay. They're also known as the glowfish. इनमें there are pink zebras, yellow zebras and green zebras. So very fun fish to keep. You can keep them in good quantities also. And काफ़ी brighten up करते हैं space को, and they're pretty sturdy. So good fish to begin with. ओके. सो इस टैंक में कौन से फिशेस हैं मैम? So this is also a basic beginners plantation aquarium जिसमें हमारे पास color widows हैं. कलर विडोज़ के साथ जनरली जैसे हम लोग अलग अलग टैंक्स के वीडियोस ले रहे हैं, आपने देखा होगा अलग अलग फिशेस अलग स्ट्राटा ऑफ वाटर में रहते हैं. तो एक टॉप लेयर वाली फ़िश है, एक Okay. मीडियम लेयर फ़िश है और एक बॉटम Bottom layer लेयर फ़िश है.
सो आप यहाँ पे अगर बॉटम में देखेंगे वी गॉट सम ब्यूटीफुल कॉरिडोरास, दीज आर द स्टर्वे कॉरिडोरास. ओके सो ये बॉटम फिश है एंड ऑल्सो हेल्प्स विद द क्लियरिंग ऑफ algae इन द एक्वेरियम. ओके. स्टर्वे कॉरिडोरास एंड कलर विडोज. सो मैम द रीज़न बीइंग इनका इतना अच्छा कलर विडोज का जनरली मैं देखता नहीं हूँ. सो इसका क्या रीज़न है इतना अच्छा कलर आया है? सी अगर आप देखेंगे अपने जितने भी अभी तक भी टैंक्स देखेंगे स्टोर पे, वी फोकस अ लॉट ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द फिशेस. तो हमने कोशिश ये की है कि फ़िश जिस टाइप के पानी में नेचर में रहेगी हम लोग रेप्लिकेट करें दैट इन द एक्वेरियम. तो विडोज वुड हैव बेसिकली बिन फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स जहाँ पे फॉलिएज होता है, मतलब प्लांट्स रहते हैं. Okay. तो हमने उनको जब उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा है देन यू कैन सी दैट यू नो द कलर इज रियली पॉपिंग आउट बिकॉज ऑफ दैट. Also, whenever you are planning an aquarium, one of the most essential parts in planning the look of the aquarium is the correct lights. So, अलग अलग टैंक्स की अलग अलग लाइट रिक्वायरमेंट्स होती है. मरीन की वाटर में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको अलग लाइट के केल्विन्स एंड कलर्स का रिक्वायरमेंट होता है एज अपोज टू फ्रेश वाटर टैंक. So, fresh water tank and plantation specifically will require a better quality of lighting. So once you have a good lighting and you have a good ecosystem, your fishes will really, look very nice. ओके. सो मैम इस टैंक के अंदर कौन सी फिशेज हैं? So we have some red and yellow parrots in this aquarium. कुछ अलग varieties के Oscars हैं, like we have copper Oscars, albino copper Oscars, tiger Oscars, and we also have pacu piranhas. ओके. So ये जितनी भी fishes हैं, these are fishes which are going to grow pretty large in size. So जब भी हम लोग एक्वेरियम प्लान कर रहे होते हैं तो हम लोग को वी हैव टू कीप इन माइंड कि वो मछली कितनी बड़ी होने वाली, नॉट द करंट साइज. Okay. सो इसमें यहाँ पे भी हमने कंसिडरिंग दैट दे आर गोइंग टू ग्रो लार्जर एक लार्जर एक्वेरियम में रखा है सो दैट द कस्टमर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इवेंचुअली दिस फिश इज गोइंग टू रिक्वायर स्पेस. सो मैम ये कौन सी फिशेज है इस टैंक में? सो वी बेसिकली हैव प्लांटेशन टैंक के लिए जो फिशेज रहती हैं इसमें हैं. सो आप देखेंगे जो रेड नोज वाली फिशेज हैं, दीज आर कॉल्ड द रमी नोज. सो कमिंग फ्रॉम द कलरेशन ऑफ द नोज. देन वी हैव नियॉन टेट्रास, ये जो ब्लू लाइन के साथ आपको फिशेज दिख रही हैं, दोज आर वेरी फेमस इन द प्लांटेड कम्युनिटी. देन आपको फिशेज दिखेंगी हॉकी स्टिक्स. सो हॉकी स्टिक्स का नाम अगेन उनकी बॉडी के ऊपर जो ब्लैक लाइन है दैट लुक्स लाइक अ हॉकी स्टिक, सो हेंस दे हैव गॉट द नेम. सो दीज आर ऑल वैराइटीज ऑफ टेट्रास, वेरी गुड टू बी केप्ट इन प्लांटेड एक्वेरियम्स. सो इस टैंक में कौन सी फिश है मैम? सो हियर वी हैव सम जर्मन ब्लू रामारिजीज ओके. एंड इसी के पीछे आप देख सकते हैं वी हैव द गोल्डन बलून रामारिजी. एंड जो ऑरेंज कलर की फिश आपको पीछे दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द स्वॉट टेल. Okay. So these are semi-aggressive or? These are actually good to be kept in planted aquariums. Okay, आप planted fish. aquariums में रख सकते हैं. They do have a temperament to be semi-aggressive, so you have to plan the tank mates accordingly. Okay. So इस टैंक में कौन से है मैम? So here we have the Malawi chichlets. So they are named Malawi chichlets because they are basically native to the Lake Malawi in Africa. इन फिशेस को बेसिकली जो वाटर में मिनरल कंटेंट है वो हायर चाहिए होता है. सो वी प्लान द स्केपिंग अकॉर्डिंगली. वी हैव सम रॉक्स एंड सैंड्स अकॉर्डिंग टू हायर मिनरल डेंसिटी. तो इनमें कलर कौन कौन से हैं मैम सिक्लेट्स के? सो हियर जो आप देख रहे हैं सामने दैट्स कॉल्ड द कोडांगो. कोडांगो विल हैव अ कलरेशन ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज ऑन द बॉडी एंड वी हैव सम बनाना चिचलेट्स, दैट्स द ब्राइट येलो वन दैट. So ये कौन से अरवानाज है मैम? So these are one of the most interesting fish in the aquarium industry. These are basically the silver arowanas that you can see over here. So arowanas को काफ़ी powerful fish माना जाता है, not only because of the body structure but because they play a very vital role in Vastu and Feng Shui. Okay. So there are different colors and patterns in which these fish are available. एंड कहा जाता है कि आप अगर अपने घर में या आपके ऑफिस में स्पेसिफिकली एरोवानास रख रहे हैं तो ये आपका प्रॉस्पेरिटी बहुत इंक्रीज करते हैं. सो अ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव एक्चुअली गॉन इन फॉर एरोवानास इन देयर ऑफिस स्पेसेस एंड दे हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स. आई वुड से इवन वन ऑफ द मेजर रीजंस वी वर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस वाज बिकॉज ऑफ द एरोवाना दैट वी हैड एट आवर.
सो मैम ये कौन सी बेटा फिश है? ये जो आप फिश देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द जायंट बेटा फिश। ये जितने साइज की अभी है इट इज़ गोइंग टू ग्रो टू ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ दिस, हेंस द नेम जायंट। एंड इसका टेल का जो शेप है बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड अ प्लेकार्ड। ओके। सो मैम ये कौन सी बेटा फिशेस हैं? दीज आर कॉल्ड द कैंडी नीमो बेटा फिश। सो इनके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल स्टार मार्किंग्स रहते हैं। These are all different varieties of the candy Candy Nemo, and these are half moon tailed. ओके। पेपर इस साइड है Okay. सो ये कौन सी बेटाज है? These are OHMs, over half moon tail bettas. So golden blues हैं। ये वाली कौन सी सेम These are OHMs only. These are red and then a mix of red and blue. काफ़ी pretty colors आते हैं इनमें भी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा सेटअप दिखाए, इतने नॉलेज दी फिश के बारे में। सो एक बार अपना शॉप का लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बता दीजिए। Thank you so much, Tanish, for taking out your time and showing everyone the aquarium store over here. हमारा जो स्टोर है Aquatic Biotopes, this is located in around Baner Link Road. आप अगर Google Maps पे सर्च करेंगे तो it is by the name of Aquatic Biotopes Baner. You can contact us directly on our WhatsApp or by call. The numbers are 8806 554603 and 9325103418. So these are our contact details. We would also like to introduce you to our Aquatic Biotopes family. तो जैसे आप जानते हैं कोई भी एक्वेरियम को सेट होने में टाइम लगता है, उसको मेंटेन भी करना होता है। देयर इज अ प्रॉपर नॉलेज दैट हैज़ टू बी शेयर्ड विद द क्लाइंट्स। एज हम लोग के अलग अलग साइट पे वर्क्स चलते हैं, बी इट कॉर्पोरेट्स, बी इट होम्स, चाहे वो पॉन्ड्स हो, एक्वेरियम्स हो, स्विमिंग पूल्स या फाउंटेन्स। समटाइम्स वी आर नॉट अवेलेबल एट द स्टोर। एट दैट पॉइंट इन टाइम वी हैव आवर मेंबर्स ऑफ एक्वेटिक बायोटोप्स जो आपको इस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर फैमिली ओवर हियर। So here we have Mr. Manish Tiwari and here we have Mr. Sudama Mukherjee. हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम EMP। मैं पुणे में एक्वेटिक बायोटॉप्स में 8 साल से जॉब कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे काम करके। हम लोग फ्रेश वाटर का भी काम करते हैं, मरीन का भी काम करते हैं। हम लोग सब मिलके काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अपने काम चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। आई एम फ्रॉम उड़ीसा, सुदामा मुखी। मैं इस काम पे 3 साल से, हम लोग परिवार के जैसे काम करते हैं और ये काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इस काम पे मेरे को कुछ सीखने का मिला, कुछ आगे जाके सीखने के लिए और भी काम करने के लिए सीखने के लिए मेरा उम्मीद है। और मैं जो सीख रहे हैं वही कस्टमर को हमें बता रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए। तो फिश जिसका क्लाइमेट है उनको उस क्लाइमेट में रखना कैसा है, सब गाइड में करता है। और साथ के साथ कुछ सीखने के लिए मेरा और भी आगे जाने का बहुत मन है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। आप ट्यून रहे हमारे चैनल पे, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो सर ने सेटअप्स किए हैं सर, उनके वीडियोस भी अपन कवर करेंगे। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।